Hello everyone. In this lecture, we will learn and discuss about endotracheal intubation. Endotracheal intubation is a medical procedure in which a tube is placed into the windpipe, or it is also known as trachea. In most emergency situation, it is placed through the mouth. इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की ट्यूब ट्रैकिया में इंसर्ट की जाती है. सो it is a process where a small size tube introduced into the trachea through the nose or as well as mouth. Generally, there are several purposes to do this procedure. In this, the first purpose to provide oxygen. Sometimes if the patient is in emergency condition, like if the patient is in trauma और पेशेंट का सीवियर एक्सीडेंट हो गया है, एयर ब्लॉकेज है, बहुत सारा सिक्रीशंस है, वो ऑक्सीजन बाहर से नहीं ले पा रहा है, इन दैट टाइम इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन इज ओनली द ऑप्शन टू प्रोवाइड ऑक्सीजन सपोर्ट टू द पेशेंट एंड टू रिमूव सिक्रीशन. बिकॉज ऑफ सिक्रीशन की वजह से पूरा एरिया ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया है, तो सिक्रीशन को रिमूव करने के लिए भी इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन किया जाता है. नेक्स्ट, टू मेंटेन एयरवे, आर्टिफिशियल एयरवे फॉर 10 to 14 days. अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, पेशेंट को लॉन्ग टर्म उसको ऑक्सीजन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर 1 to 2 weeks लग रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि अभी सरवाइव नहीं कर पाएगा या उसका जो ऑक्सीजन सपोर्ट है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में 2 weeks तक हम इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन पेशेंट के लिए कर सकते हैं. अगर कभी ऐसी कंडीशन होती है कि जो इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन है वो और आगे रिक्वायर्ड है, मतलब 2 weeks कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके बाद आफ्टर 2 weeks ट्रैक्यूस्टोमी परफॉर्म की जाती है. मतलब अगर 21 days से ज्यादा का टाइम अगर ऐसा हो रहा है कि पेशेंट ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, उसका जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो उस कंडीशन में ट्रैक्यूस्टोमी परफॉर्म की जाती है. सो देयर आर सेवरल इंडिकेशंस ऑफ दिस एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन. इन दैट फर्स्ट इंडिकेशन इज रेस्पिरेटरी फेलियर. रेस्पिरेटरी फेलियर बहुत सारे रीजन से हो सकते हैं, जैसा अगर जो रेस्पिरेटरी मसल्स है, जो इस यहाँ पे जो मसल्स है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, उनका अगर पैरालिसिस हो गया है, बहुत सीवियर इंजरी हो गई है, या कोई स्पाइनल नर्व डैमेज हो गया है, तो उस कंडीशन में जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो काम करना बंद कर देंगी. और अगर रेस्पिरेटरी मसल्स काम नहीं करेगी तो जो हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा. देन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. Respiratory distress syndrome, then high risk of aspiration during any trauma or any injury. Then for intubation we have to remember 6P. Okay, 6P हमें कुछ points याद करने होते हैं intubation के पहले. So the first P, that is indicate P for preparation. We have to prepare the articles as well as the patient as well as the ourselves. So preparation is most important point. Then second is pre-oxygenation. Before intubation, we have to provide oxygen to the patient. Means pre-oxygenation, we have to give 100% oxygen to the patient before intubation. Then pre-treatment. In the pre-treatment, some medications are required for the muscle relaxant, as a muscle relaxant or as a anesthetic agents. Then next is paralysis and induction. Then placement of the tube, correct placement, because if we will insert the endotracheal tube into the trachea, so there will be chances to go that tube into the esophagus or pharynx. So we have to know ki the trachea is the tube which we have inserted, it is in correct position or not. Then post-intubation management. So 6 P's. First is preparation, then pre-oxygenation, then pre-treatment, paralysis and induction, then placement of the tube and post-intubation management. So now I will proceed on the guidelines for intubation. First guideline for the intubation, that is optimal head and neck positioning. Head and neck positioning, it is most important for the correct placement of the intubation, for the correct placement of the ET tube. Then optimum muscle relaxant, because it is very important. If muscles will not relax, so we can't insert the ET tube easily. So it is important to give the muscle relaxant to the patient. Then optimal laryngoscope blade. Optimal laryngoscope blade. Laryngoscope blade, it is available in various sizes. So it is important, according to age group, we have to select the exact or correct size for the patient.
then optimal external laryngeal manipulation and optimal use of the बोजी. ऑप्टिमल यूज ऑफ दी बोजी. बोजी एक थिन प्लास्टिक की रॉड होती है जिसे हम इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के पहले ट्रैकिया का मेजरमेंट करने के लिए करते हैं. ओके, सो एक थिन प्लास्टिक की रॉड है जिसे ट्रैकिया में पास कराया जाता है और उस जो वो बोजी है उसका जो साइज होता है वो 70 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. उसे हम ऐसे कर्व शेप करके ही इंसर्ट करते ताकि इजिली जो इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन है उसे हमें किस शेप में टर्न करना है और इजिली इंसर्शन के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट है. बोजी जो है वो 7 सेंटीमीटर की लेंथ है बट उसे हमें 35 सेंटीमीटर तक ही इंसर्ट करना होता है. 35 सेंटीमीटर तक ही, मतलब जो 35 सेंटीमीटर है अगर इतना पार्ट बोजी का अंदर है तो वो 35 सेंटीमीटर जो है वो कैरिना तक पहुंचेगी. मतलब 35 सेंटीमीटर इंसर्शन है, मतलब जो हमारा टिप है वो कैरिना तक पहुंच चुका है. 35 सेंटीमीटर के बाद हमें उसे पुश नहीं करना है. Now I will proceed on the preparation for intubation. So first of all we will see what are the instruments which are required for the endotracheal intubation and what are the things we have to keep ready for the intubation. So in that, first thing we have to take the consent from the patient or her relatives. If the patient is not conscious, in that time we will take the consent from the relative. नेक्स्ट हमें कैनुला की पेटेंसी को चेक करना है कि कैनुला ब्लॉक तो नहीं है, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसीजर और बिफोर प्रोसीजर वी हैव टू गिव सम इंजेक्शंस. मसल रिलैक्सेंट इंजेक्शन दिए जाते हैं. उसके पहले हमें चेक करना है कि जो कैनुला है वो ब्लॉक तो नहीं है. अगर ब्लॉक है तो हमें अगेन कैनुलाइजेशन परफॉर्म करनी है. देन लैरिंजोस्कोप रेडी करके रखना है. हमें चेक करना है कि लाइट जो लैरिंजोस्कोप में रहती है वो वर्किंग है या नहीं. ठीक है, सो चेक लाइट इज वर्किंग और नॉट. एंड एज वेल एज वी हैव टू चेक द अदर पार्ट्स ऑफ द लैरिंजोस्कोप ऑल्सो. इसके आपको पहले प्रिपरेशन करके रखना है, पहले चेक करके रखना है. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज इंडोट्रैकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब. ईटी ट्यूब हमें अलग अलग साइज़ के रेडी करके रखने हैं बिकॉज वी डोंट नो कि विच साइज़ इज़ रिक्वायर्ड. पेशेंट क्योंकि इमरजेंसी केस में आता है तो हमें कई साइज़ में इंडोट्रैकियल ट्यूब को रेडी करके रखना होता है. उसके साथ ही हमें प्रोसीजर के पहले जो इंडोट्रैकियल का पैक है साइड से ओपन करके वी हैव टू पुश द एयर. बैलून को चेक करना है एयर पुश करके, जैसे मैं साइड से कर रही हूँ. यहाँ पे आप फ्रंट में हमने उधर से एयर पुश की तो यहाँ पे जो बैलून है वो इन्फ्लेट होगा. चेक करना है कफ को. दिस ईटी ट्यूब इज अवेलेबल इन 2 टाइप, नॉन कफ्ड और कफ्ड. नॉन कफ्ड में जो ईटी ट्यूब है उसमें इन्फ्लेशन वाला सिस्टम नहीं है, कफ्ड नहीं है. और जनरली जो नॉन कफ्ड ईटी ट्यूब है वो बच्चों के लिए यूज़ होता है, पेडियाट्रिक में यूज़ होता है. बिकॉज जो क्रिकॉइड रिंग इज सफिशिएंटली नैरो टू फॉर्म अ सील ऑल बाय इटसेल्फ. बच्चों में जो क्रिकॉइड रिंग होती है वो नैरो होती है तो वहाँ ईजिली फिक्स हो जाता है. और जो कफ्ड है, कफ वाला हम अडल्ट में यूज़ करते हैं तो ये कफ की हेल्प से जो ट्रैकिया है वो सील हो जाती है सो दैट जो पॉजिटिव प्रेशर कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द लोअर एयरवे. Next is Jalokin jelly. We have to keep the Jalokin jelly because it is useful to apply in tip of the ET tube for easy insertion. क्योंकि अगर हम Jalokin jelly अप्लाई करेंगे तो पेशेंट को पेन नहीं होगा. इसके अलावा we have to keep ready 10 ml syringe to inflate the cuff of ET tube. 10 ml syringe यूज़फुल है उस कफ को इन्फ्लेट करने के लिए. इसे हम साइड से ऐसे एयर पुश करेंगे. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज एम्बू बैग. एम्बू बैग को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए यूज़ किया जाता है प्री ऑक्सीनेशन के टाइम पे. इसके जो पार्ट्स हैं, ये जो बैलून जैसा पार्ट है इसे इन्फ्लेटिंग बैग कहते हैं. और ये मास्क है. मास्क और बैग के बीच में जो पार्ट है दैट इज़ रिजर्वर, इसे रिजर्वर कहते हैं. ये बीच वाला पार्ट रिजर्वर है.
नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज बोजी। बोजी एक थिन प्लास्टिक की ट्यूब होती है जिसे हम इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए यूज़ में लाते हैं। इस बोजी के ऊपर ही इंडोट्रैकियल ट्यूब को फिक्स किया जाता है ताकि हम ईजिली उसे इंसर्ट कर सकें। ये एक हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंजर्शन के वक्त। इसके अलावा हमें स्टिलेट भी रखना है क्योंकि सम टाइम होता है कि स्टिलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। स्टिलेट की हेल्प से हम उस जो इंडोट्रैकियल है उसका शेप चेंज कर सकते हैं बिकॉज ये स्टील का है, थोड़ा स्टफ है, तो हमें ईजिली इंजर्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज कैप्नोमीटर। कैप्नोमीटर का यूज़ हम CO2 कंसनट्रेशन के लिए CO2 कंसनट्रेशन को चेक करने के लिए करते हैं एक्सहेल्ड एयर में, और इसके साथ साथ ET ट्यूब के करेक्ट प्लेसमेंट को भी हम कैप्नोमीटर से आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा हमें जो भी इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है उसे हमें पहले से लोड करके रखना है सिरिंज में, जैसे सक्सिनिलकोलिन, मिडाजोलम, ये सारे इंजेक्शन को हमें प्री लोड करके रखने हैं। देन सक्शन मशीन को भी चेक करके रखना है, उसके साथ कैथेटर भी अटैच करके रखना है और उसे चेक करना है कि इट इज़ वर्किंग और नॉट, बिकॉज वी हैव टू कीप ऑल द आर्टिकल इन वर्किंग कंडीशन। देन नॉर्मल सलाइन सक्शनिंग के लिए और डायनाप्लास्टर या ET टाई ET ट्यूब को सिक्योर करने के लिए। इस इमेज में देख सकते हो आप, ये डायनाप्लास्टर है जो कि ET ट्यूब को सिक्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्चुअली ये डायनाप्लास्टर का लॉन्ग रोल है, इसे हम कट करके यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू नीड वी हैव टू मेक कट एंड यूज़। देन PPE किट, personal protective equipment kit. In this kit all articles are included like gloves, mask, shoe cover. Next is laryngeal mask or tracheostomic kit. If the intubation is failure और intubate नहीं हो पा रहा है because of some condition, patient की condition ऐसी है, तो उस condition में हो सकता है कि patient को tracheostomy करना पड़े और या फिर laryngeal mask के थ्रू वेंटिलेट किया जाए। इसके अलावा हमें वेंटिलेटर को चेक करके पूरा अरेंज करके उसके सारे मोड को वर्किंग करके सेट करके रखना है ताकि जब भी हम इंट्यूबेट करें उसके बाद तुरंत हम पेशेंट को वेंटिलेटर से कनेक्ट कर दें। मीन्स इट शुड बी रेडी, कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन एंड एयर प्रेशर सप्लाई। It also included ventilator tube, the tube which is attached to the ET tube with ventilator. We should also keep oral airway. Sometime अगर patient होता है कभी ट्यूब को बाइट कर देता है तो for the protection of the ET tube we have to attach oral airway and nasal cannula to provide oxygen during procedure. Then Megley's forceps. Megley's forceps is used to direct injection of ET tube in the trachea in emergency situation. अगर ET tube dislodged हो गई है तो उस condition में Megley's forceps का use करके हम ET tube को दोबारा insert करते हैं. Then we have to keep the ready biomedical waste management for the proper disposal of waste, biomedical waste. So this is all about ET tube, endotracheal intubation. What are the articles which are required for ET intubation? In next video I will show the demonstration of endotracheal intubation.